So we are starting with the next topic. Now what is the equation of the tangent to the hyperbola? It is same as we have done for the ellipse or for circle or for parabola, that if this x square over a square minus y square over b square equal to 1 is the equation of the hyperbola. तो आपको पता है इसको हम s से डिनोट करते हैं equation of curve को. So equation of tangent is given by t is equal to 0. So t क्या हो जाता है, x square is replaced by x(x1) and y square is replaced by y(y1). So equation of tangent is given by x(x1) over a square minus y(y1) over b square is equal to 1 at the point x1, y1. So this is important कि जब हम equation of tangent निकालते हैं तो p जो है this point x1, y1 lies on the hyperbola, and then equation of tangent at p is given by t is equal to 0. So नेक्स्ट है, ये आर्टिकल आपने एक बार रीडिंग देनी होगी तो आप इसको रीडिंग दे सकते हो. नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1, y1 वही सेम. पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं, उससे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलती है. देन स्लोप ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय नेगेटिव रेसिप्रोकल, एंड देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज गिवन बाय y माइनस y1 is equal to slope into x minus x1. इसको सॉल्व करेंगे. So this is the equation of normal to the hyperbola at the point x1, y1 which lies on the hyperbola. So I am repeating here that it is very important to check the location of the point x1, y1. Next है point of intersection of a line with the hyperbola. So we know that whenever we have to find point of intersection, we substitute the value of x or y in the equation of curve. So y is equal to mx plus c को आप यहाँ substitute करोगे तो you will get a quadratic equation in x. So giving us two values of x, putting these values of x one by one in the equation of line, we will get corresponding two values of y and hence the 2 points of intersection. Now condition of tangency. So condition of tangency के लिए find the condition that the line y is equal to mx plus c may touch the hyperbola. तो सबसे हम करेंगे क्या, point of intersection find करेंगे इनका. So y is equal to mx plus c आप यहाँ substitute करोगे, इसको solve किया, quadratic in x, then x वाली terms and then constant term. Now this line is touching the hyperbola. इसका मतलब हमें एक ही point of contact मिलना चाहिए. That means ये जो क्वाड्रेटिक इन एक्स इक्वेशन है दिस शुड बी हैविंग इक्वल रूट्स, और जब हमारे पास इक्वल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन इज ऑलवेज 0. सो इसका डिस्क्रिमिनेंट दैट इज 2a स्क्वायर एम सी का होल स्क्वायर माइनस 4a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू द कॉन्स्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 0. सो नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायरिंग की है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे. देखो 4a स्क्वायर तो कॉमन आ गया उधर, बाकी काफ़ी टर्म्स कैंसिल होके फाइनली आई एम गेटिंग सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो इलिप्स के केस में ये आया था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इलिप्स के हाइपरबोला के केस में ये होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दैट सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आपको पता है ये सी की वैल्यू हम यहाँ पे जब सब्सटीट्यूट कर देते हैं, so we get y is equal to mx plus minus under root a square m square minus b square are the equation of tangents in terms of slope, that is in slope form. So whenever we have to take any tangent to the hyperbola in slope form, we take one of these, that is y is equal to mx plus under root a square m square minus b square. I hope this is clear to you. Next है हमारे पास length of the intercept. So y is equal to mx plus c. अगर इस हाइपरबोला को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है ऐसे, तो हमें लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड करना है. तो उसके लिए क्या किया, वही y is equal to mx plus c को इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इन x वैल्यूज़ मिलती हैं. हमने सपोज कर लिया कि वो वैल्यूज़ हैं x1 और x2. तो वो x1 और x2 को जब आप इसमें पुट करते हो तो आपको y1 और y2 मिल जाता है. ठीक है. सो अब यहाँ पे अगर आपको ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट फाइंड करनी है पी क्यू, तो आप क्या करोगे, ये देखो ये किया इन्होंने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब y2 और y1 कैसे मिलना था हमें, इसमें पुट करके x1 की वैल्यूज़ को,
तो ये वाली वैल्यूज़ इन्होंने यहाँ से y2 माइनस y1 जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c कैंसिल होके m टाइम्स x2 माइनस x1 मिल गया। तो यहाँ पे बन गया m स्क्वायर टाइम्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में है क्योंकि, तो कॉमन आ रहा है x2 माइनस x1 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है, सो इसका मतलब अब मुझे x2 माइनस x1 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जब ये क्वाड्रेटिक की नेक्स्ट इक्वेशन आई थी हमने बोला था लेट इट्स रूट्स बी x1 x2, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें निकालना आता है। सम ऑफ रूट्स इज गिवन बाय कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज गिवन बाय द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो अब x2 माइनस x1 चाहिए, तो x2 माइनस x1 कैन बी रिटन एज a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab अंडर रूट। सो वो रिजल्ट यूज़ किया, ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके पूरा सॉल्व करके ये हमारे पास वैल्यू आ गई अंडर मॉड ऑफ x2 माइनस x1 की। सो ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे हम, एंड दिस इज़ द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट। सो ये आर्टिकल अगर पेपर में आ जाता है तो आपको आना चाहिए, बहुत ही ईजी आर्टिकल है ये। देन फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन में टच द हाइपरबोला। तो इसके लिए आपको पता, आप हमेशा क्या करते हो, लेट p x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय t is equal to 0. Now equation 2 and 3 are representing the same line. So comparing the coefficients x1 और y1 मिल जाएगा। ये x1 y1 क्योंकि हाइपरबोला के ऊपर लिया था तो हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो ये वैल्यूज़ हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे हाइपरबोला की इक्वेशन में, एंड हेंस वी विल गेट द रिक्वायर्ड कंडीशन। सो अगेन कंडीशन आपको लर्न करनी है तो आप कर सकते हो, नहीं करनी है तो पेपर में अगर आता है, आपको किसी क्वेश्चन में आता है तो वी विल यूज द आर्टिकल इटसेल्फ टू फाइंड द कंडीशन। नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज अगेन वेरी इजी, प्रूव दैट द लाइन विल बी ए नॉर्मल टू द हाइपरबोला। सो आप वही करोगे, लेट p x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 0, वहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट, देन स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल फाइंड कर लो। उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड विद स्लोप। सो ये आपको मिल जाएगी, जो पीछे हम ये आर्टिकल करके आए हैं, आर्टिकल 8। ये वाला पूरा आर्टिकल आपको अगर पेपर में ये फर्स्ट एग्जांपल आता है तो यहाँ पे आपको आर्टिकल 8 जो है वो करके दिखाना है। ठीक है, सो नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वी हैव फाउंड, and this is the equation of normal they have given us. So both the equations are representing the same lines. So comparing the coefficients करेंगे तो हमें x1 और y1 की वैल्यू मिल जाएगी। Now again x1 y1 lies on the hyperbola, क्योंकि हमने लिया था ये जो पॉइंट है ये हाइपरबोला पे होता है। तो ये वैल्यूज़ जब आप इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे तो you will get the required condition for the given line to be normal to the hyperbola. So this is the exercise 7b which you have to try. Easy questions हैं इसमें। ठीक है, and these are the answers of the exercise. Now next topic is a point lies inside, outside or on the hyperbola. सो ये टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पहले आप अपनी एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट कर लो। सो विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर।